اب اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو جو ہے 6 نمبر کی مذاکرے میں بیٹھنے کی اور سننے کی اور سمجھنے کی، جو اللہ کی بڑائی بیان کرنے کی اور سننے کی ہم لوگوں کو جو ہے نصیب عطا فرمائے. آمین. میرے محترم بزرگ دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض و صحبت میں رہ کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے بہت سے صفاتیں سیکھی تھی، جن میں سے چند سی صفاتوں پر عملی مشق کر لینے پر ہم اور آپ کو جو ہے پورا کا پورا دن پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. جن میں سے سب سے پہلا ہے ایمان، دوسرا ہے نماز، تیسرا ہے علم اور ذکر، چوتھا اکرام مسلم، پانچواں اخلاص نیت، چھٹا دعوت اللہ اور لعینی باتوں سے پرہیز. بھائی ایمان، سب سے پہلا ایمان سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہمارے دلوں کا یقین بدل جاوے. تصویر ہاتھ کا دکھا رہا ہے بھائی. ایمان سے بریلوی ہوگا. ایمان سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہمارے دلوں کا یقین بدل جاوے. ایمان، اس میں جو ہے 4 باتوں کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. کتنا باتوں کا؟ 4 باتوں کا یاد رکھنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلا کام ہے کیا؟ ایمان کا الفاظ کو صحیح ہونا. دوسرا ہے ان کا معنی کا پتہ ہونا. تیسرا ہے ان کا مطلب کا علم ہو. چوتھا ہے ان کے تقاضے کو جان کر پورا کرنا. ہاں، یاد رہیں گے بھائی انشاءاللہ. تو ایمان کا سب سے پہلا جو ہے کیا تھا کہ ایمان کا الفاظ کا صحیح. ایمان کا الفاظ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا معنی ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے. ان کا مطلب ہے، ایمان کا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، جو بھی کچھ ہوتا ہے تنہا ایک اللہ سے ہوتا ہے. ہاں، عزت، ذلت، موت، حیا، بیماری، شفا، سب تنہا ایک اللہ کے حق میں ہے. ہاں، تو بھائی دنیا کے سارے انسان اور سارے جنات مل کر کے کسی ایک انسان کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو کوئی مائی گلال اسے نفع نہیں پہنچا سکتا. اور دنیا کے سارے انسان اور جنات مل کر کے کسی ایک انسان کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو کوئی مائی گلال اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس لیے ان کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جاوے. ہاں بھائی، ان کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جاوے. انہی کا کلمہ کا 2 جز ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ دوسرا جز جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کا مطلب ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکی نورانی طریقے پر 100% کامیابی کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جاوے. 100% کامیابی کے یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جاوے، اور ان میں سے ہٹ کر کے غیروں کی طریقے پر 100% ناکامیابی کے یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جاوے. تو ان کا جو ہے پاکی نورانی طریقہ کیا ہے؟ یہ امامہ باندھنا سنت ہے، یہ داڑھی رکھنا سنت ہے، مونچھ کٹوانا سنت ہے، بال کو 3 اسٹیپ کرو، یا تو ایک پورے گنجا کر لو، یا تو اسٹیپ کر لو، یا تو برابر میں رکھو، یہ سنت ہے. لباس پہننا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہاں، پیجامہ چھوٹی پہننا، کرتا لمبی پہننا، سرما لگانا، تیل لگانا راتوں کو، یہ سب سنت ہے. تو ان کی طریقے پر 100% کامیابی ہے. اور ان کے طریقے سے ہٹ کر کے اگر ہم چاہیں گے پروفیسر ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، بہت بڑا مالدار ہے، تو اگر وہ زندگی ہماری کامیابی ہو جائیں گی، وہ کبھی نہیں ہوگی، وہ جو ہے ناکامیابی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چوتھا نمبر میں جو ہے کیا ہے؟ تقاضے کو جان کر کے پورا کرنا. تقاضا ان کا یہ ہے کہ من چاہی زندگی کو چھوڑ کر کے رب چاہی زندگی اختیار کرنا. تو کل قیامت کے دن ہمیں جو آج اگر ہم من چاہی زندگی اختیار کریں گے تو کل قیامت کے دن ہماری رب چاہی زندگی اختیار کرنے کو ملے گا. اگر آج ہم رب چاہی زندگی اختیار کریں گے تو کل قیامت کے دن ہماری من چاہی زندگی ہوگی. یعنی کہ بھائی میرے محترم دوستو، یہ من چاہی زندگی جو ہے کیا ہے؟ من ہمارا چاہتا ہے کہ ہم جو ہے شراب پیوں، غلط کام کروں، نماز نہ پڑھوں، قرآن نہ پڑھوں، یعنی کہ ہر عبادت نہ کروں،
हर चीज़ बुरे बुरे काम करने को दिल करता है। यानी कि कुरान शरीफ से, अल्लाह का कुरान है जो कुरान से हट करके हमको काम करने का दिल चाहता है, दिल का सुकून मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो है मनचाही ज़िंदगी नहीं, बल्कि क्या है कि रब ने क्या फरमाया कि नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, ज़कात करो, सुन्नत का इत्तिबा करो, दाढ़ी पे चेहरे पे दाढ़ी रखो। हाँ, ये तुम्हारे बीवी को अच्छी नहीं लगी, तुम्हारे बहन को अच्छी नहीं लगेगी, हमारे भैया को चेहरे पे दाढ़ी हो और अच्छा ना लगे देखने में, बीवी को अच्छा नहीं लगेगी कि हाँ ये चेहरे पे दाढ़ी हो और मुझे अच्छा नहीं लगे। तो इस सब को तोड़ना है, हाँ, जाहिलियत की बातों को तोड़ना है। और अल्लाह ने जो हुक्म दिया है, जवानी की हालत में नमाज़ पढ़ने जाता है, कैसे शर्म नहीं। अरे पंजाबी को देखते, पंजाबी को जो बड़े बड़े बच्चे जो होते हैं वो भी जो है क्या करते हैं, पाग बांधते हैं, दाढ़ी रखते हैं। तो क्या उनका भी बीवी भाग जाती है क्या? नहीं भागती ना। क्या होती है कि उनका उसूल है और आदाब है, उस उसूल और आदाब को करेंगे। इसीलिए भाई मेरे मोहतरम दोस्तों, क्या है कि हमारा मनचाही ज़िंदगी को जो है क्या करना, मनचाही ज़िंदगी को छोड़ के रबचाही ज़िंदगी इख्तियार करना। ठीक है इंशाल्लाह। तो कल क़यामत के दिन जो है क्या होगी, हमारी जो है रबचाही ज़िंदगी अगर इख्तियार करके हम जाएंगे इस दुनिया के अंदर से, तो कल हमारी क़यामत के दिन जो है हमारी मनचाही ज़िंदगी होगी। मन हमारा जो जी में आया बस अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौरन हाजिर, दिल में आया इरादा किया मुझे ये चाहिए फ़ौरन हाजिर, ये खाना है, इतने बड़े मेवे आ जाएंगे, इतने बड़े बड़े मेवे होंगे। हाँ, इतने बड़े बड़े मेवे होंगे, वो अंगूरे होंगे, वो तोसे होंगे, वो जन्नत की बागों में रखेंगे। और रख करके जो है हमें अल्लाह पाक जो है ऐसी नेमतें देंगे। दिल में आया फ़ौरन हाजिर, लड़की चाहिए, दिल में आया फ़ौरन हूर हाजिर। अल्लाह अकबर, अल्लाह के खजाने में कोई चीज़ की कमी है ही नहीं, बगान है बगान। हाँ, तो ये यहाँ पर है क्या कि हम अपनी मनचाही ज़िंदगी को ना गुजारे, रबचाही ज़िंदगी को गुजार करके और लेकर जाए। भाई मेरे मोहतरम मुझको दोस्तों, ईमान की हकीकत को हमारे ज़िंदगी में लाने के लिए जो है 3 लाइन की मेहनत है। कितनी? 3 लाइन की मेहनत है। सबसे पहला काम है लोगों में चल फिर करके हकीकत ईमान की खूब दावत दी जाए। लोग में दावत ये देना है, दावत ये है कि लोगों में चल फिर करके हकीकत ईमान की खूब दावत दी जाए। और दावत ये देना है कि देखो, एक हदीस का मफ़हूम है कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अल्लाह पर इस तरह तवक्कुल करो, यानी कि इस तरह ईमान लाओ, इस तरह विश्वास करो कि जिस तरह उनका हक़ है। तो जब हक़ है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है क्या करेंगे, जो जिस तरह से दरिंदे परिंदे चरिंदे को रोज़ी पहुंचाती है, इसी तरीके से हमको भी रोज़ी अल्लाह पाक पहुंचाएंगे। कैसे? तो सुबह जो है खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भरा हुआ वापस आते हैं। चरिंदे परिंदे को नहीं देखते भाई, तो सुबह जो है खाली पेट निकलते हैं खाली पेट निकलते हैं और जो है खाली पेट निकलते हैं और जो है शाम को पेट भरा हुआ वापस आता है, पेट भरा हुआ वापस आता है। तो इसी तरीके से हमारे भी अल्लाह पाक जो है देंगे, हमारे भी अल्लाह पाक जो है इसलिए हमारे भी देंगे। हाँ, तो इसलिए जो हमको क्या करना है कि हमको भी इस तरह से करना है, करेंगे भाई इंशाअल्लाह। और एक हदीस का मफ़हूम है कि देखो, इस रूहे जमी पर जब तक एक अल्लाह 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 कहने वाला बाकी रहेगा, तब तक अल्लाह पाक जो है इस दुनिया को निज़ाम को इसी तरह चलाते रहेंगे जिस तरह अभी चला रहे। और जिस दिन एक अल्लाह, इस रूहे ज़मीन पर एक अल्लाह 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 कहने वाला बाकी नहीं रहेगा, उस दिन दुनिया का निज़ाम को कोई मतलब नहीं, कोई तकाज़ा नहीं, सब तौर पर कर जो धर्म भरम यानी कि क़यामत नाजिल कर देंगे अल्लाह पाक। हाँ, और जो है भाई दूसरा है अमली मस्क करना। अमली मस्क इनका ये है कि मखलूक से कुछ होता हुआ नज़र आवे तो दिल को समझाए और रोके कि ये मखलूक से नहीं होता है, ये तो जो भी कुछ होता है तन तनहा एक अल्लाह से होता है। अरे फलना साहब ने जो है, फलना बाबू ने ये मखलूक ये चीज़ बनाए तो उनसे नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि अल्लाह से होता है। ये किनसे होता है? अल्लाह से होता है। तो इसलिए जो है मखलूक से कुछ नहीं होता है, जो भी कुछ होता है तन तनहा एक अल्लाह से होता है। और अपने आप को देख करके गौर फिक्र करे और तंबीह करे कि कैसे अल्लाह ने आँख बनाया, हमारे ऊपर गौर फिक्र करे और तंबीह करे जो कैसे अल्लाह ने आँख बनाया, कैसे नाक बनाया, कैसे मुंह बनाया, कैसे चेहरे बनाया, कैसे हाथ बनाया, कैसे पाँव बनाया, कैसे जिस्म बनाया, कैसे दिमाग बनाया, कैसे हर आज़ा को अल्लाह पाक ने बनाया, इस पर गौर व फिक्र करना और तंबीह करना। हाँ, कि अल्लाह हर कुछ का कादिर है, हर कुछ के बगैर हर कुछ कर सकता है, हर कुछ के बगैर हर कुछ कर सकता है, जो चाहे कर सकते हैं अल्लाह पाक। हाँ, इस पर जो है गौर व फिक्र करना।
भाई लोग कहते हैं कि देखो फलना साहब ने जो है ट्रेन बनाया, फलना साहब ने देखो प्लेन बनाया जो कैसे आसमान में उड़ रहे हैं। आसमान में उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है? तो भाई मेरे मोहतरम मुझको दोस्तों, जो लोग जो है ताजुब करते हैं कि देखो आसमान पे प्लेन उड़ रहे हैं कि लोग ने बनाया, मखलूक ने बनाया। भाई उसमें कितने इंजन? 3 इंजन। एक सीज हो जाए तो एक लगा दे, दूसरा लगा दे, दूसरा सीज हो जाए तीसरा लगा दे, तीसरा सीज हो जाए मर जाएंगे। लेकिन हजरत ये नहीं देखते कि उनको दिमाग किसने बनाया। अल्लाह पाक ने जो है, जब अभी लोग ताजुब करते जो कि 3 इंजन है, लेकिन जो गिद्ध को नहीं देखते, गिद्ध को देखते, चील को देखते, बाज को हुई उड़ रहा है, लेकिन उनको जो है ना इंजन है, ना पेट्रोल है, ना तेल है, ना कोई भी चीज़ है। कैसे अल्लाह पाक चला रहे? थोड़ा अल्लाह को देखो तो सही। हाँ भाई, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त को जो है हुक्म होता था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म करते थे कि ए सुलेमान बताओ तुम्हारे ताबे कर दिया गया, तुम्हारे ताबे कर दिया। और तुम्हारे ताबे करने के बाद में जिधर का हुक्म होता था उधर को चल देते थे तख्त, हाँ, बिना पेट्रोल का, बिना पेट्रोल का, बिना जो है इंजन का, बिना उसका। तो अल्लाह पाक जो है चलाने वाले जात अल्लाह की है, वो चलाते थे। हाँ, तो इस पर यकीन करना है, ठीक है इंशाल्लाह। और तीसरा नंबर में है कि रात की तन्हाई में उठ करके रो करके अल्लाह से हकीकत ईमान को खूब मांगे। दूसरी सिफत है नमाज। नमाज से ये चाहा जाता है कि हमारे 24 घंटे की ज़िंदगी जो है, यानी कि सिफत सलात पर आ जाए। 24 घंटे की ज़िंदगी हमारी नमाज वाली हालत पर आ जाए। नमाज में जिस तरह हम पढ़ते हैं, तो हम जो नमाज जो पढ़ते हैं, तो नमाज में जो है हमारा क्या होता है कि हम किसी से बात नहीं करते हैं, न किसी को गाली देते हैं, न किसी से हम तकरार करते हैं, न इधर देखते हैं न उधर देखते हैं, हम दरमियानी हिस्से में हम देखते रहते हैं। तो इसी तरीके से जो है हमारी नमाज वाली 24 घंटे की ज़िंदगी भी नमाज वाली हालत पर आ जावे। हाँ, तो हमारा जो है क्या होगा? तो भाई ये नमाज जो है ये है। और कहा कि देखो दुनिया के अंदर में जितना भी कुछ भेजना था, जब भी कुछ भेजना था अल्लाह रब्बुल आलमीन को, तो क्या किया? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से अल्लाह पाक ने इस दुनिया के अंदर में भेजा। लेकिन जब नमाज देने का वक्त आया तो अल्लाह पाक ने क्या किया? अल्लाह पाक ने क्या किया कि नमाज जो है अपने प्यारे लाडले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हुकूकी पे, अपनी मेराज पे बुला करके नमाज जो है तोहफे के रूप में दिया। हाँ, और कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नमाज तुम्हारे हर उम्मत पर, हर आकिल बालिग मर्द औरत पर 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज पढ़ना फ़र्ज़ आइन है, फ़र्ज़ आइन। और इनको छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। तो कहा कि इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस नमाज से मुझे क्या मिलेगा? तो कहा कि देखो जिस तरह आप हमसे बात कर रहे हो, अभी नज़दीक हो, इसी तरह जो तुम्हारी उम्मत में 2 रकात कोई नमाज पढ़ेगा बराह रास्त मुझसे बात करने वाला होगा। बराह रास्त मुझसे बात करने, यानी कि आप हट करके जो भी कोई पढ़ रहा है तो बराह रास्त मुझसे बात करने वाला हो जाएगा, मुझसे बात करने वाला। इसीलिए तो कहा गया कि नमाज मोमिन का मेराज है, नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज बुराइयों से रोकती है, नमाज भलाइयों की तरफ लेके जाती है, नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज शैतान की मुँह काला करती है, नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, नमाज से रिज़्क़ में रिज़्क़ की तंगी को दूर करती है, नमाज कब्र के अज़ाब से महफूज रखती है। इसीलिए हाँ, तो इनको करेंगे इंशाअल्लाह। और कहा कि देखो नमाज की हकीकत को हमारी ज़िंदगी में लाने के लिए 3 लाइन की मेहनत है। सबसे पहला काम है लोगों में चल फिर करके हकीकत नमाज की खूब की दावत दी जाए। दावत क्या दे कि भाई एक हदीस का मफ़हूम है कि अल्लाह पाक जो है हाँ इरशाद फरमाते हैं कि जो तुम्हारे उम्मत में 5 वक्त का कोई नमाज पढ़ेगा उसे मैं 5 इनाम दूंगा। तो सबसे पहला क्या है कि लोगों में जो 5 इनाम क्या है कि लोग जो मारे जो फिर रहे हैं, तो सब 5 काम ये है कि 5 इनाम कि लोग जो है मारे जो फिर रहे हैं रिज़्क़ के लिए, पैसा के लिए, तो कहाँ जाते हैं? इंडिया, हांगकांग, लंदन, यूरोप, सऊदी, कतर, हाँ, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, लंदन जाते कि नहीं, जापान, चाइना, कहाँ लोग जो है घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिज़्क़ के लिए, अपने रिज़्क़ के लिए। लेकिन अल्लाह पाक जो है क्या कर रहे हैं कि रिज़्क़ की तंगी को दूर कर दूंगा। यानी कि एक मुर्गी को जो है एक जगह अगर दाना दे दिया जाए तो क्या करेंगे? चुन चुन करके सारा का सारा निकल जाएगी, खा जाएगी। और इसी दाने को जो है इतना ही को जो है पूरा ऐसे छीड़ दे तो क्या होगा? मुर्गी को
जो है चुनने में थोड़ा टाइम लग जाएगी, वक्त लग जाएगी। इसीलिए कहा गया है कि मोमिन को जो है रिज़्क़ मैं ऐसा ही पहुंचाऊंगा जैसे मुर्गी को दाना देता हूं। अगर 5 वक्त की नमाज़ पढ़े तो एक जगह दूंगा। हाँ, रिज़्क़ तो अल्लाह पाक ने जो है हमको पैदा होने से 50,000 साल पहले हमारे रिज़्क़ जो है अल्लाह पाक ने लिख दिए हैं। हाँ, जो कितना खाना है, कितना रहना है, कितना क्या करना है दुनिया के अंदर में लिख दिया है। तो उसी हिसाब से मिल करके रहेंगे। अगर दुआएं खैर करेंगे तो उससे भी बेहतर अल्लाह पाक अपने फजल से दे सकते हैं। तो कहा कि जो नहीं मानेगा हमारी बात को उसको मैं इसी तरह छीट करके दूंगा, यानी कभी सऊदी, कभी कतार, कभी यूरोप, कभी हांगकांग, कभी लंदन, कभी सऊदीया, हाँ, कभी कतार। तो इस सब में जो घुमाएंगे अल्लाह पाक, कहेंगे लो तुम अपनी रोजी की तलाश करते रहो। हाँ, दूसरा है ये ज़िंदगी में, और दूसरा है मरने के बाद जो कब्र के अजाब जो है भाई मेरे मोहतरम मुझको तो बहुत सख्त है। इनका आता है कि हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक हदीस का मफ़हूम है कि हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी कब्र से गुजर होता तो इतना रोते कि उनकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती थी। तो किसी ने पूछा कि ऐ उस्मान इतना क्यों रोते हैं, जबकि आप जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब जाते हैं तो जन्नत और जहन्नम को जब देखते हैं, जब तज़किरा होता है तो इतना नहीं रोते हैं, लेकिन जब यहाँ पर कब्र को देख लेते हो तो इतना रोते कि दाढ़ी मुबारक तर हो जाती है। तो कहा कि देखो मैं इसलिए रोता हूँ कि एक कब्र जो है ना, कब्र जो है जन्नत की मंजिलों में से ये सबसे पहली मंजिल है, ये आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है। ये कहा कि देखो जो यहाँ पर जो है बच गया वो बचते चला जाएगा, ताकि इनको जो है सबसे पूछ जो है यहीं से शुरू हो जाएगी, सबका पूछ तो यहीं से शुरू होगा। और ये जो बचेगा बचते जन्नत में चला जाएगा, यानी कि जन्नत के बागों में से एक बाग है। और जो यहाँ से फंस गया तो फंसते जहन्नम में चला जाएगा, यानी कि जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है ये। हाँ, इसलिए जो है मेरे मोहतरम अल्लाह पाक जो है क्या करेंगे कि कब्र की अजाब से महफूज रखेंगे, कब्र की अजाब से महफूज रहेंगे। और कब्र की अजाब जो है ना भाई क्या बयान करें, बहुत सारी है कब्र का बयान, आप लोग खुद बयान करो, ठीक है इंशाल्लाह। कब्र को अल्लाह पाक जो है कैसे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माने होंगे उनको जो क्या करेंगे, कब्र को जो है दबा दिया जाएगा, एक पसलियाँ एक दूसरे में घुस जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस तरफ की पसलियाँ इस तरफ ऐसे घुस जाएंगी और कब्र में आग जला दिया जाएगा। और ये एक सांप मुसल्लत कर दिया जाएगा, जो गंजा सांप होगा, इतना लंबा होगा कि दिन भर सफ़र करने से भी उनका जो है रास्ता नहीं, वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। दांत ऐसा होगा कि लोहे का, आग होगा, आँख जो है आग का होगा, उनकी आवाज़ जो है बिजली की कड़क की जैसी होगी। और एक बार वो फूंक मार दे अगर ज़मीन पर, तो जिस जगह फूंक मारेगी जो ताकि क़यामत तक जो है घास नहीं उपजेगी, घास नहीं पैदा होगी, इतना जहरीले जान। तो वो जो है उनको 70 को मारेंगे तो 70 गज ज़मीन के नीचे धंसा देंगे, फिर निकालेंगे, फिर मारेंगे, फिर निकालेंगे, फिर मारेंगे। कहेंगे तो हमको क्यों मारे जाते, कहा कि हमको पैदा ही इसलिए किया गया कि तुमको मारा जाओ, तुम्हारे मारने के लिए। तो कहा कि तुम्हारे मारने के लिए, तो कहा कि तुम फजर की नमाज जो छोड़ दिए थे, तो तुम जोहर तक मारे जाओगे, तुम जोहर का नमाज छोड़ दिए थे, तुम असर तक मारे जाओगे, असर का नमाज छोड़ दिए थे, मगरिब तक मारे जाओगे, मगरिब का नमाज छोड़ दिए थे, ऐसा तक मारे जाओगे, हत्ता कि ऐसा का नमाज छोड़ दिए थे, अब तुम फजर तक मारे जाओगे, हत्ता कि क़यामत तक तुमको इसी तरह से मारता रहूँगा। तो इसलिए जो कहा कि जो नमाज़ पढ़ते हैं उनको कब्र के अज़ाब से महफूज कर देंगे। और तीसरा है कि पुलिस रात पर बिजली की तरह पार करवा देंगे। जो जहन्नम की आग जो धधक रही है उसके ऊपर में से पुल है, और जो है पुल जो है भाई मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, कहा कि बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज जो है पुलिस रात है। 500 साल चढ़ाई है, 500 साल बराबर है, 500 साल ढलान है, यानी कि उतरने वाले तो 1500 साल का मुसाफिर रास्ता है। लेकिन कहा कि उसमें जो है पार करना है, अंधेरे में पार करना, नंगे पाँव पार करना है। लेकिन जो इंसान अगर जो है जो नमाज़ पढ़ता है तो उनको जो है बिजली कैसे आता है, कड़क से बिजली आई और चली गई, करका गया। इसी तरह से बिजली पाँव रखते ही फौरन उस पार करवा देंगे अल्लाह पाक। अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह का फजल है। तो इसलिए भाई मेरे मोहतरम मुझको दोस्तों कहा कि देखो चौथा है नामी अमाल जो है दाहिने हाथ में देंगे। नामी अमाल तो देगा, लेकिन सबको देगा अल्लाह पाक, लेकिन दायां हाथ और बायां हाथ दोनों में देंगे। तो कहा कि जिनको बायां हाथ में अगर मिल जाए तो क्या करेंगे,
तो बायां हाथ में जिनको मिल जाए, दाहिना हाथ में जिनको मिल जाए, तो वो जो खुशी के मारे सबको दिखाते रहे, कोई अरे फलना, अरे वो फलना, अरे वो फूल बाबू, अरे वो नसरुद्दीन चाचा, अरे वो इब्राहिम भाई, अरे वो मास्टर साहब, देखो 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 मुझे नाम अमाल मिल गया, दाहिना हाथ में मिल गया। यानी जन्नत की टिकट है वो, जन्नत की टिकट। और जिनको बाएं हाथ में अगर मिल गया तो सर जो है नीचे करेंगे और रोते 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 अपने पसीने से तरबतर हो जाएंगे और जो है रोते रोते परेशान हो जाएंगे। उस दिन अल्लाह को भी तरस नहीं आएगी, तरफ जो है मौत, कोई भी मौत आ जाएगी लेकिन अल्लाह को तरफ नहीं आएगी। कहेंगे हाँ रो, रो करके जो है इतना रोएगा, इतना रोएगा कि आंसू सूख जाएगी। आंसू सूखने के बाद जो है भाई मेरे मोहतरम मुझको दोस्तों क्या करेंगे, फिर जो है खून के आंसू रोएगा, खून भी सूख जाएगा लेकिन पीप के आंसू निकलेगा, पीप से भी नहीं होगा। अल्लाह पाक जो है उनको माफ़ नहीं करने वाले, और चाहे तो अपने फजल से माफ़ कर सकते हैं। तो ऐसा है, इसलिए जो है अल्लाह पाक जो है दाहिने हाथ में नाम अमाल देंगे। और कहा कि देखो पाँचवा है बिना हिसाब किताब जन्नत में दाखिला अता फरमाएंगे। तो बिना हिसाब किताब जो है जन्नत में दाखिल करवाएंगे भाई मेरे मोहतरम मुझको दोस्तों। तो कहा कि एक कतरे पानी का अगर अल्लाह पाक जो हिसाब किताब लेना बैठ जावे तो खुदा की कसम हम नहीं दे सकते, लेकिन अल्लाह पाक जो है बड़ा बेनियाज है, बड़ा इज्जत वाले हैं। तो हम लोगों को जो है बिना हिसाब किताब जन्नत में दाखिला अता फरमाएंगे। हाँ, तीसरा है इल्म और जिक्र, तीसरा सिफत है इल्म और जिक्र। हाँ, तो भाई ये था अमली मस्क करना, अमली मस्क करना। ये नमाज की अमली मस्क दूसरा नंबर में क्या है कि अमली मस्क इन चीज़ का करना है कि भाई एक है जाहिरी, एक है बातिनी। जाहिरी इनका ये है कि मैं इस ध्यान से नमाज़ पढ़ रहा हूँ, 2 रकात नमाज़ पढ़ रहा हूँ कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। अगर इतना दिल में ना आवे तो इतना तो ज़रूर कहे कि अल्लाह तो मुझे देख ही रहा है। और तीसरा है हाँ, और अल्लाह तो मुझे देख ही रहा है। और तीसरा है कि रात की हाँ जाहिरी ये है, जाहिरी ये है कि जाहिरी ये है कि वजू से लेकर के और सलाम फिरने तक हर अरकान को सही से करने वाले बन जाओ। बातिनी ये है कि मैं इस ध्यान से नमाज़ पढ़ूँ कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। अगर इतना ना हो सके तो इतना तो ज़रूर करे कि अल्लाह तो मुझे देख ही रहा है। हाँ, तो इसलिए जो है भाई मेरे मोहतरम मुझको दोस्तों। और तीसरा है रात की तन्हाई में उठ करके रो करके जो है अल्लाह से क्या करेंगे, हकीकत नमाज को मांगेंगे। इल्म से ये चाह जाता है, तीसरा सिफत है इल्म। इल्म से ये चाह जाता है कि हमारा तहकीक का जज्बा पैदा हो जावे। इल्म से ये है कि हमारा तहकीक का जज्बा पैदा हो जावे, यानी कि हमारे उम्मत में यानी उम्मतों में हर आकिल बालिग मर्द औरत पर जो है इतना न इल्म सीखना ज़रूरी है कि पाकी नपाकी का तमीज़ हो जाए, हलाल हराम का पहचान हो जाए। पाकी नपाकी का तमीज़ हो जाए और हलाल हराम का पहचान हो जावे। हाँ, इल्म जो है था, साहबा रज़ी अल्लाह ताला अजमैन के ज़माने में इल्म था। हाँ, इल्म था उस ज़माने में 100% दिन पे जो है खड़े किए हुए थे। इल्म जो है ऐसे थे, जिस दिन से जो है इल्म जो है निकला 100% दिन जो है निकला, तो उस दिन से क्या हो गया, उस दिन से क्या हो गया कि इल्म जो है हाथ से निकल गई। तो नमाज जैसे अहकाम फरीजा भी, नमाज जैसे अहम फरीजा भी मुसलमान के हाथ से निकल गए, लेकिन गैर महसूस तरीके से निकल गए, लेकिन पता भी नहीं चलता, इसका एहसास भी नहीं होता मुसलमानों को कि नमाज छूट गए। तो भाई मेरे मोहतरम मुझको दोस्तों, इल्म की हकीकत को हमारी ज़िंदगी में लाने के लिए 3 लाइन की मेहनत है। सबसे पहला काम है लोगों में चल फिर करके हकीकत इल्म की खूब की दावत दी जाए। तो दावत क्या देंगे कि एक हदीस का महकूम है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान अपने घर से निकलते हैं इल्म दीन सीखने के लिए, जैसे बच्चे हो मदारिस में हो, मौलाना हो, अगर वो मदारिस जा रही है या अल्लाह के रास्ते में जो निकल रहे हैं वो सब दीन सीखने के लिए जा रहे हैं, तो फरिश्ते उनके पाँव के नीचे पर को बिछा देते हैं। अल्लाह अकबर, फरिश्ते उनके पाँव के नीचे पर को बिछा देते हैं। जिस रास्ते से गुजरते हैं तो रास्ते भी जो है रास्ते में जो है कहा कि समुंदर की मछलियाँ भी उनके लिए मगफिरत की दुआएं मांगती है, दुआएं मगफिरत मांगती है। हाँ, हत्ता कि कहा गया है कि जंगल में रहने वाले मौजे जानवर भी उनके लिए मगफिरत की दुआएं मांगती है। हाँ, तो इसलिए कहा कि इल्म जो है सीखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, इल्म जो है बहुत ज़रूरी है। अभी जो है पता चलता है कि हलाल हराम क्या है, तमीज़ ही नहीं है क्या, हराम क्या है हलाल क्या है, जैसा मन लगा वैसा खा लिया। पाकी नापाकी किसको कहते हैं कोई मालूम नहीं, कोई पता ही नहीं चलता है। तो ये जो है भाई इल्म की हकीकत को हमारे ज़िंदगी में लाने के लिए 3 लाइन की मेहनत है। सबसे पहला काम तो वही जो हमने बता दिया अभी, जो लोगों में चल फिर करके हकीकत इल्म की खूब दावत दी जाए। दूसरा है अमली मस्क करना। अमली मस्क इनका ये है कि हर अमल के वक्त उसकी कीमत का पता हो, हर अमल के वक्त
اس کی कीमत کا पता हो कि मैं अमल कर रहा हूँ उसकी कीमत क्या है कि नहीं, हर अमल के वक्त उसका कीमत का पता हो। और दूसरा जो है भाई मेरे मोहतरम मुझको दोस्तों, मोतबर उलमा की सोहबत इख्तियार की जाए, उलमाए कदर उलमाए दीन की सोहबत इख्तियार की जाए। और तीसरा ये है कि मोतबर किताबों को तन्हाई में मुताला किया जाए। मौलाना साहब फरमाते हैं कि मोतबर किताबों को जो है तन्हाई में मुताला किया जाए। और चौथा नंबर में है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर ज़िंदगी गुजार कर और उसमें जो भी कोई मसला पेश आवे तो उसको जो है क्या करना है, उसको जो भी कोई मसला पेश आवे तो उनको जो है किसी मोतबर उलमा से पूछ कर हम जो है उनको सही से करने वाले बन जावे। करेंगे भाई इंशाअल्लाह। तीसरा जो है रात की तन्हाई में उठ करके रो करके जो है अल्लाह से हकीकत इल्म को मांगे। इनका दूसरा जुज है जिक्र से ये चाहा जाता है कि अल्लाह का ध्यान नसीब पैदा हो जाए, अल्लाह का कुर्ब नसीब पैदा हो जाए। यानी कि भाई मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, दुनिया की मशगूली चाहे जायज़ या हलाल ही क्यों ना हो लेकिन दिल पर असर ज़रूर करती है। उस असर का नाम है गफलत को दूर करने के लिए क्या है, अल्लाह की ज़िक्र की बहुत बड़ी ज़रूरी है। तो इसलिए कहा गया कि गफलत को दूर करने के लिए अल्लाह की ज़िक्र की ज़रूरत होती है। जिस तरीके से क्या होता है कि हमारे कपड़े और बदन को साफ़ करने के लिए अगर मैल कुचैले लगे हुए हैं तो कपड़े और बदन को साफ़ करने के लिए जो है साबुन की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से जो है जिस तरीके से लोहे में लगी हुई जंग को दूर करने के लिए आग की भट्ठी की ज़रूरत होती है, इसी तरीके से हमारे जो है दिल में लगी हुई जंग को दूर करने के लिए अल्लाह की ज़िक्र की ज़रूरत पड़ती है। अल्लाह की ज़िक्र की ज़रूरत पड़ती है। शुरू में क्या कहते मालूम हुआ ना कि साबुन और कपड़े को हाँ, यानी कि तो ये हो गई। और उनके बाद में जिक्र की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। और इसलिए कहा गया है कि भाई देखो, जो जिक्र की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है तो इसलिए जिक्र करना हमें जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है क्या करते थे, दोनों जहां में क्या थे, बख्शाए थे। दोनों जहां में बख्शाए थे। तो इसलिए जो है, लेकिन फिर भी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है क्या करते, 80 मरतबा 100 मरतबा जो है तस्बीहात को पढ़ा करते थे। 80 मरतबा 70 मरतबा 80 मरतबा जो है 100 ये जो है इस्तिग़फ़ार पढ़ा करते थे। इसलिए कहा गया कि भाई देखो, हमारे बड़ों ने बताया है कि 3 तस्बीहात को 100 मरतबा सुबह और शाम जो है पढ़ना है। क्यों? क्योंकि सुबह और शाम जो होते हैं ना, फरिश्ते की तब्दीली के वक्त है, इसलिए जो है हमें क्या करना है, उसको पढ़ना है। ठीक है इंशाअल्लाह। तो कहा कि देखो, पढ़ने के लिए जो है मेरे मोहतरम 100 बार इसको पढ़ना है और जो खूब को पढ़ना है, जिक्र करना, अल्लाह की जिक्र करना है। तो ये कहा गया कि हमारे जिक्र की हकीकत को हमारे ज़िंदगी में लाने के लिए 3 लाइन की मेहनत है। क्या? 3 लाइन की मेहनत है। सबसे पहला काम है लोगों में चल फिर करके हकीकत इल्म की खूब की दावत, हकीकत जिक्र की खूब की दावत दी जाए। तो यहाँ पर हदीस पेश करेंगे इंशाअल्लाह। कहेंगे अल्लाह, एक हदीस का मफ़हूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो जिक्र करने वाला दिल जिंदा की मानिंद है, जिक्र न करने वाला दिल मुर्दा के मानिंद है। जो जिक्र करता है तो उनका जो है जन्नत के 8 दरवाजे हैं, एक दरवाजे का नाम जाकरीन है। तो जो है कल क़यामत के दिन पुकारेंगे, अरे वो जाकरीन वाले दरवाजे जो पुकारेंगे, कहाँ है वो मुझे जिक्र करने वाला, ए अल्लाह। और अल्लाह से कहेंगे, दरख्वास्त करेंगे, कहाँ है वो जो जिक्र करने वाला, उनको जो है हमारे पास भेजिए, ताकि वो जिक्र करने वाला जो है हमारे अंदर से और आ जाए। वो जन्नत के दरवाजे पुकार देगी, आओ हमारे अंदर आ जाओ, उनको जो है अंदर कर लेगी। हाँ, तो इसलिए जो है भाई मेरे मोहतरम मुझको दोस्तों, तो दूसरा है अमली मस्क करना। अमली मस्क इनका ये है
कि 3 तस्बीहात सुबह शाम। तीसरा कलमा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ला हौला ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। दूसरा है दरूद शरीफ, चाहे 40 दरूद शरीफ में कोई भी 40 आपको जो आता हो वो पढ़े। हाँ, इब्राहिम वाला दरूद शरीफ पढ़े या दूसरा पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। या उससे छोटे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। या उससे छोटे हैं नहीं आ रहे को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हमको लेना है। हाँ, नाम हमको लेना है। इसलिए जो भाई मेरे मोहतरम मुझको दोस्तों, तो ये जो है ये हो गई। और तीसरा है अस्तगफार पढ़ना, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियत। इनका फजाइल तो बहुत बड़ा है। फजाइल ज़िक्र में हम लोगों ने जो है इनको याद किया करते हैं, और बड़ों ने बताया फजाइल ज़िक्र में इनको जो बयान जो है कर दिए हैं। हाँ, तो एक बार सुभान अल्लाह पढ़ने से क्या होगा, एक गुलाम, अरबी गुलाम आज़ाद करने के बराबर सवाब मिलेगा। और 100 मरतबा अगर पढ़ लिए तो 100 अरबी गुलाम जो है आज़ाद करने के बराबर सवाब मिलेगा। और एक बार अल्हम्दुलिल्लाह अगर पढ़ लिए तो 100 जो है घोड़ा जीनों लगाम के साथ जिहाद में देने के बराबर सवाब मिलेगा। हाँ, अगर जो है 100 मरतबा पढ़ ली तो 100 घोड़े हाँ देने को मिलेगा। और कहा एक बार अल्लाहु अकबर पढ़ेंगे तो क्या होगा, एक ऊँट जो है, सुर्ख ऊँट जो काबिल कबूल जो है कुर्बानी में देने के बराबर सवाब मिलेगा। और सुर्ख ऊँट जो है अरब में बहुत महंगे हैं। हाँ, तो हम लोग जो है 100 मरतबा पढ़ेंगे, 100 ऊँट कुर्बानी देने के काबिल बराबर सवाब मिलेगा। तो भाई हम लोग जो कुर्बानी देते हैं घर में, कबूल होता है कि नहीं होता है वो तो मालूम नहीं होता, अल्लाह ही मालूम। लेकिन ये तो काबिल कबूल यानी कबूल है, कबूल हो गया। तो इसलिए कहा गया कि भाई इनको जो है इनको पढ़ना है। और एक बार जो है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर और जो है 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह अगर पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, ज़मीन और आसमान के दरमियानी जगह में जो है जितने भी खाली जगहें हैं उनको अल्लाह पाक जो है क्या करते हैं, नेकियों से पूर्ण कर देते हैं, नेकियों से पूर्ण कर देते हैं। तो इसलिए भाई इनको क्या करना है, 100 मरतबा ये पढ़ना है। हाँ, और जो है कहा कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अगर ये हम 100 मरतबा पढ़ते हैं तो 99 बीमारी का शिफा है। कितना? 99 बीमारी का शिफा है। हाँ, और दरूद शरीफ अगर हम पढ़ लेते हैं, एक बार अगर पढ़ लेते हैं तो क्या है, 10 गुना 40 फ़ायदे हैं। 10 गुनाह मिटा देते हैं, 10 जो है नेकी बढ़ा देते हैं, 10 रहमतें नाजिल कर देती है, 10 नाम अमाल में लिख दिया जाता है। हाँ, तो और जो है अगर 100 मरतबा अगर हम पढ़ लेते हैं अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियत, तो बोले अगर हम पढ़ लेते हैं तो क्या होता है कि समुंदर की झांझ की बराबर, समुंदर की झांझ की बराबर गुनाह क्यों ना हो, अल्लाह पाक सारा गुनाह को जो है मिटा देते हैं। हाँ, सारा गुनाह को माफ़ कर देते हैं। हाँ, तो पढ़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। हाँ, तो ये है इनका फ़ायदा जो है भाई मेरे मोहतरम मुझको दोस्तों कहा कि 3 तस्बीहात को